you. Okay, so a very good evening, everyone, and I, Shweta Sharma, welcome you all to our third live session on the behalf of Mansa Global Foundation for Mental Health under the series of Zindagi Jeene Ka Naam Hai, a ray of hope, which we started for the suicide prevention. As we are discussing since last 2 days, suicide is preventable. What are the best ways to deal with it, and what is the psychology behind it? To understand the psychology behind it, we are keeping like different speakers with different specialty from positive psychology, from clinical psychology, so that we can relate where we need to provide that help, where we can prevent, because that prevention is possible definitely. But when attempt happen, we can't do anything. So here we are with our third speaker. Last 2 days we discussed about the impulsive behavior, compulsion and self-harm, suicide among Kashmiri children and adolescents, where we all also covered about the general issues related to children and adolescents. So now we are highly grateful to our like previous speakers, and we welcome Dr. Urvashi Datta as a guest speaker for today's session to understand signs of suicide, basically perspective of self and family. So I would like to welcome ma'am on our stage. Definitely, ma'am. Thank you so much for giving us time, and I would like to introduce you. That's my privilege because she is my faculty member during my graduation. She was my counselor, and she guided so many students, especially college students, and we still feel that connection more than a teacher. So that's why I always want her as a speaker for this issue, for this topic. So Dr. Urvashi Datta is from the field of psychology, having a work experience of 15 years in the field of higher education and psychological counseling. Her core area is positive psychology. Currently, she is serving as an assistant professor at Jagran Lake City University, Bhopal, from last 4 years. Previously, she was working with BSS College and Newton College, which are very famous college in MP and Bhopal. Before that, like she is also registered counselor with National Career Services, Government of India. She has also working actively with local and national organizations like Aadhaar, Digdarshika, Bharati Counseling Psychological Organization. So under that, they are also planning to establish National Association of Psychology, if I am right, ma'am? Yeah. So one umbrella for all the psychologists. Like we are definitely struggling with who is clinical psychologist, who is counseling psychologist, where we need to report. So they are working for this one umbrella, and ma'am is actively participating in the core team. So we are very happy to have you, ma'am. Welcome, and all yours. Please start with the session. Okay. Thank you so much, Shweta. Um, I'm here to talk about the warning signs that one can understand with suicide. And generally, it has been seen that it's not as if suicide or suicidal ideation, suicidal thoughts, they just come all of a sudden one day, right? There are times when we find that a person has been going in that downward spiral for quite some time before these things start to this thought starts to come in the mind, right? So the basic signs that you can think about that we have identified, the warning signs that are there, is that this person starts to look for ways that can be possible to kill oneself, right? He starts to feel hopeless. उसको लगता है कि लाइफ का कुछ मीनिंग नहीं रहा है, कुछ पर्पस नहीं रहा है. अगर हम जैसे ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल व्यू भी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये इस चीज की बात बहुत करी गई है कि जब एक इंसान को लगता है कि भाई अब मेरे लाइफ में ना कोई पर्पस नहीं है, कुछ करने का कुछ जील नहीं बचा है, क्या करूं मैं पूरी तरीके से फंस चुका हूं, मैं ट्रैप्ड हूं, बहुत ज्यादा पेन है, मैं दूसरों के ऊपर बर्डन बन गया हूँ क्योंकि मैं खुद कुछ डिसाइड नहीं कर पाता हूँ, मैं खुद कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो आई एम अ बर्डन ऑन अदर पीपल एंड आई डोंट लाइक बीइंग दैट बर्डन ऑन अदर पीपल, राइट? ये व्यक्ति अपने बात करता है कि मेरे को अपने आप को मारना है, आई वांट टू किल माई सेल्फ, आई डोंट सी एनी पॉइंट इन लिविंग एनी मोर. दिस इज वेरी कॉमन. Signs are always there. Signs are always there. We just need to understand. Yes. Yes. Yes.
देन स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, ईटिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, इंसान एकदम से विड्रॉ हो गया है, पहले बहुत बात करता था, बहुत जोवियल था, हर किसी के साथ बैठता था, अब नहीं कर रहा है. So this is one sign, but then again I have encountered some such situations also, जहां मैंने देखा है कि बहुत हंसता खेलता बच्चा था, लास्ट डे तक हंसता खेलता रहा और एक दिन उसने सडनली सुसाइड कर लिया. तो दिस ऐसा इज नहीं है वेरी कि कॉमन, दिस इज वेरी हाँ कॉमन. आई थिंक मैक्सिमम लोगों का बाद में यही आता है कि ऐसा तो कभी लगा ही नहीं था. हाँ, एंड फिर उनको गिल्ट होता है. In हम्म. fact, I encountered this recently only, that one of my students and her best friend committed suicide suddenly. एंड वो मतलब शी वॉज सो डिस्ट्रॉट जब मैं उससे मिली उस इंसिडेंट्स के बाद. एंड मैंने उससे पूछा कि लाइक क्या हुआ तुमको आज, उसके पहले उसने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं क्या? तो बोली कि मैम वो बोलता जरूर था कि घर में लड़ाई हो गई है, अभी मेरे को बात नहीं करना, मेरा मूड अच्छा नहीं है, लेकिन बोली कि कभी भी उसने इस तरीके की बात नहीं करी, या ऐसा लगा नहीं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लेगा. But then this is where maybe our society lacks a lot. Ki a person within the society, he does not feel that there are people, enough close people around me who will support me when I need that support. या जिनको मैं बेधड़क होके बोल सकता हूँ, जो मुझे जज नहीं करेगा. मतलब हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे कजन्स हो, या इवन फॉर दैट मैटर इफ यू वांट टू गो इन फॉर सम प्रोफेशनल हेल्प या काउंसलिंग, और यू वांट टू टॉक टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट or a psychologist only, or maybe any person that you have that trust in, कि जिसके ऊपर आप जिससे बात करो तो आपकी बात यहाँ से वहां नहीं जाएगी, बल्कि आपको उस चीज पे हेल्प मिलेगा. तो ये एक चीज, बहुत बड़ी चीज है जिसपे हम एज अ सोसाइटी बहुत ही ज्यादा लैक करते हैं. We do need to build that environment in the society ki there is nothing wrong in wanting to have some support. इसमें कई बार because one of my this is talking about the perspective of the parents also. तो पेरेंट्स अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं हमेशा बच्चे के सामने. I am a parent, so I know this. My son and I deal with this on a regular basis. तो because मैं अपने आप को ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग अपने बच्चे के सामने अगर पोर्ट्रे करूंगी, तो मेरे बच्चे के दिमाग में भी यही पड़ता है कि मुझे भी हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहना है. There is no scope of being a weak person. And by being a weak person, I mean a person who can show his emotions, or a person who can ask for help. Asking for help is not a sign of weakness. ये मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ. जिनको अभी मैं पढ़ाती हूँ उनको सबको मैं बोलती हूँ कि your major strength is in your vulnerability. अगर आप अपनी vulnerability नहीं दिखाने के लिए तैयार होगे, तो आपके जो हेल्प चाहिए आपको, वो हेल्प शायद आपको नहीं मिलेगी. तो उसके लिए एज अ पेरेंट ऑल्सो यू नीड टू शो योर चाइल्ड दैट इट इज ओके इफ यू आर फीलिंग सम इमोशन. It is okay if you're feeling down today. It is okay if you're dealing with stuff in your life. All you need is you need to come to me and talk to me about it so that we can get through that situation. So this is one thing that we as parents also need to give to our children. We as people belonging to the society also need to give to our children. हम हमेशा सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें दिखाते हैं. We do not like अगर कोई ऐसा कुछ पोस्ट डाल दे कि I'm not feeling happy today or I'm sad today, तो उस पर बहुत सारे एकदम नेगेटिव रिएक्शंस आते हैं कि तुमने ऐसा क्यों पोस्ट कर दिया. What is wrong with posting what you are going through or what you are feeling? Yes, exactly. जब तक आप अपने ही इमोशंस को अगर रिकॉग्नाइज करके बाहर नहीं निकाल सकते,
तो कोई और तो आपकी क्या ही मदद कर पाएगा वहां पे। हम्म एंड काउंसलिंग, आपकी काउंसलिंग की बात करो चाहे क्लिनिकल की बात करो, जब तक आपका फ्रेम ऑफ माइंड रेडी नहीं होगा टू एक्सेप्ट द हेल्प दैट इज कमिंग, हाउ विल यू बी हेल्प्ड? कोई आपकी हेल्प कैसे कर सकता है? तो दिस इज रियली रियली इम्पोर्टेंट कि लाइक वी नीड टू प्रोवाइड दैट सपोर्ट टू द पीपल अराउंड अस, एंड इट स्टार्ट्स विद ईच इंडिविजुअल। इट्स नॉट कि एक सडनली एक मूवमेंट बन जाए कि एवरीबडी इज सपोर्टिंग समबडी एल्स, एंड एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो सबको हेल्प कर रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज एवरीवन हेल्पिंग एवरीवन एल्स। आज आई मे बी डाउन, आई मे नीड योर हेल्प, कल यू मे बी डाउन, यू मे नीड माई हेल्प। सो जब तक हम उस चीज को रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ाएंगे, हाउ इज दैट गोइंग टू बी पॉसिबल? सो लोग ये सोचते हैं कि कोई करना चालू कर दे तब हम करेंगे, ये नहीं है। दिस नीड्स टू कम फ्रॉम विद इन फॉर ईच इंडिविजुअल, कि हम अपने अपनी लेवल पे जब तक धीरे धीरे एक एक पर्सन वो स्टेप नहीं लेगा, तब तक पूरी सोसाइटी उस चीज के लिए रेडी नहीं होगी। एंड इट्स नॉट अ 1 day थिंग और अ 2 day थिंग। आपको अपना भी यू नीड टू केयर फॉर योरसेल्फ आल्सो एज अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट बिफोर यू गो आउट एंड स्टार्ट हेल्पिंग अदर पीपल। So you need to be aware of yourself also. Even being a psychologist, what I feel, मैम, कहीं ना कहीं ये प्रेशर ना हमारे ऊपर बहुत रहता है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो, यू कांट एक्सप्रेस कि आप सैड हो, आप डिप्रेस्ड हो, आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज यू आर अ साइकोलॉजिस्ट। तो कहीं ना कहीं फैमिलीज में और सोसाइटी में इम्पोर्टेंट होता जा रहा है कि हर इमोशन, चाहे वो एंगर है, चाहे वो सैडनेस है, एवरी इमोशन इज इम्पोर्टेंट। तो दिस आई फील कि वो उसको रिकॉग्निशन प्रॉपर्ली मिलना जरूरी है। दिस तो आई हैव आल्सो गॉन थ्रू, एंड लाइक बोलते कि तुमको कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो, तुमको तो सब कुछ हैंडल करना आना चाहिए। Why? I am a psychologist, but I am a human being also at the same time. तो जो and being a psychologist, I think we are more aware about our emotions. So हम ज्यादा emotionally expressive होते हैं। हाँ। And then उसके साथ क्या दिक्कत होती है कि like because we are अगर हम साइकोलॉजी अप्लाई भी कर दे ना रिलेशनशिप्स में, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क होता है कि तुम अपनी साइकोलॉजी यहाँ मत झाड़ा करो, कहीं और ले जाओ। में रखो। हाँ, ये तो ये हमेशा का डायलॉग है, हमेशा का। राइट। So we were on the signs and how like not just social withdrawal can be a sign, but the exact opposite of a person being very very happy, very jovial, very outwardly and everything, may still be going through a situation where he may just commit suicide, and that it generally comes down to a split of the moment decision of a person. हमेशा it is not really planned. जनरली ये आइडेशन चलता रहता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट कभी कभी ऐसा आ जाता है जहां पे ऐसा लगता है कि सब कुछ इकट्ठा सर के ऊपर आ गया, एंड दैट इज वेयर दिस स्प्लिट सेकंड डिसीजन ऑफ टेकिंग दैट लाइफ कम्स. Risky behavior, self-destructive behavior is also generally a sign that has been seen. कि जो पहले थोड़ा सा काम एंड कलेक्टेड होता था, वो अब सडनली ही हैज स्टार्टेड टू बिहेव वेरी रिस्कीली, बहुत इम्पल्सिव हो गया है कि नहीं मुझे तो अभी मुझे ये करना है तो मुझे करना ही करना है, और उसके पीछे रीजनिंग एज सच कुछ नहीं है, बस मुझे करना रहता है. एंड कोई रोके भी तो भी उसमें वो रोकने वाला व्यक्ति भी गलत हो जाता है कई बार उस ऐसे सिचुएशंस में. एंड आई हैव ऑल्सो एनकाउंटर्ड अ फ्यू केसेस वेयर this person suddenly gives everything away. कि अब जैसे something that I am very fond of, कोई मेरा कितना भी पहचान का हो या कितना भी क्लोज हो, तो मैं अपनी चीजें, सारी चीजें ऐसे बिल्कुल बांट देने के पहले एक बार सोचूंगी कि क्यों मैं मुझे देना चाहिए कि नहीं, कल को मुझे अगर इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा. बट ये भी एक बहुत पॉइगनेंट साइन है जहाँ पे जो उनकी बहुत जैसे मेरी जो सबसे ज्यादा क्लोज चीजें होंगी वो एज अ लेगेसी में किसी और को दे दूंगी.
जो इस ऐसा कोई अगर आपके साथ इंसिडेंस होता है तो प्लीज प्लीज कीप दिस एज अ वेरी मेजर रेड फ्लैग कि दिस इज वेयर अ पर्सन इज नॉट इन द correct state of mental health, and maybe you need to talk to this person about this thing. And generally the idea is that only कि आप अगर आपके साथ कोई है ऐसा, या आपको ऐसा लगता है कि ये सुसाइडल है, तो आपको इसके सामने सुसाइड नाम नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ बिल्कुल है हाँ, एक्चुअली, वो ये बहुत टर्म बड़ा लेना मिथ ही है। नहीं उसके सामने, क्योंकि आप उसको और इंस्टिगेट करोगे उस चीज के लिए। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बिग मिथ विच नीड्स टू बी रियली बस्टेड कि ऐसा कुछ नहीं है। इन फैक्ट दिस इज, जब आप इस चीज के बारे में उनसे बात करते हो कि कैसे इस तरीके के ख्याल तो नहीं आ रहे हैं आपके दिमाग में, सो ये उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू आस्क फॉर हेल्प। एंड दिस इज वेरी लाइक कई पेरेंट्स के साथ ये डिस्कशन भी हो चुका है कि मैं अपने टीन के साथ या प्री टीन के साथ या यंग अडल्ट के साथ मैं इस टॉपिक को कैसे निकालूं या क्यों निकालूं। हो सकता है उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन वो इस चीज मैं इससे इस चीज के बारे में बात करूं, एंड देन दिस मे जस्ट मे कम अक्रॉस इन हिज माइंड, बट दिस इज नॉट एक्चुअली द केस। जब हम बात करते हैं इस चीज के बारे में, तो इट हेल्प्स देम ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि भाई यू आर नॉट अलोन, you have some support, you have people around you that care for you, you have people who you can talk to about this. And even if I am not a qualified person, like मेरा बेटा अगर आके मुझसे बोले कि मम्मा मुझे suicidal thoughts आ रहे हैं, तो मेरे तो हाथ पैर वहीं फूल जाने हैं, और मेरी तो 24 घंटे फिर उसके ऊपर नजर हो जाएगी कि ये कुछ गलत ना कर दे। तो maybe me being a psychologist, I would not be the right person to help him in this situation. But at least if I know what is going on or what is the thought that is there in his mind, I can at least redirect all of this negative energy to the right place and take him to a person who would help him out actually. क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मैं हेल्प करने लायक हो सकता है नहीं हूँ। तो this is really important for parents to talk to their children about this कि if you are ever facing any such thought, खुद को हार्म करने का, इवन सिर्फ सुसाइड की बात नहीं है कि आप अपनी जान ले लो, बट अपने आप को हार्म करने की भी अगर आपकी आइडिएशन आ रही है, या इवन इफ यू आर लाइक जस्ट अटेम्प्टिंग टू हार्म योरसेल्फ, जैसे बीच में मेरा अभी तो नहीं करता है वो, बट 4 साल के करीब जब वो था एज में, तो उसको ना गुस्सा आता था, जो उसकी कोई बात नहीं मानी उसको तेज गुस्सा आएगा और जाके अपना ऐसे अपने आप को दीवार पे फेंक देगा या जमीन पे फेंक देगा। तो मैंने उसको बिठाया एक दिन, मैंने बोला क्या हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है कि आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो इस चीज से, आपको चोट लग रही है इस चीज से? तो हाँ। तो मैंने बोला कि अब आपको फिर ये समझ में आ रहा है कि आप मम्मा के बेबी हो और मम्मा को भी हर्ट हो रहा है इस चीज से। तो फिर वो उसके दिमाग में एकदम से क्लिक करा कि भाई मैं सिर्फ अपने आप को नहीं हर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने साथ साथ अपनी माँ को भी हर्ट कर रहा हूँ, और बाकी जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो मेरी फैमिली वाले हैं उनको भी हर्ट कर रहा हूँ। तब फिर अपने आप बियॉन्ड दैट डे आई हैव नेवर सीन हिम हर्टिंग लाइक दैट, इवन इन एंगर। कितना भी गुस्सा हो जाएगा वो, अब वो गुस्सा होता है तो धड़ धड़ करके एक कोने में जाके खड़ा हो जाता है कि मेरे को किसी से बात नहीं करनी है। बट एटलीस्ट दैट सेल्फ हार्म का जो उसका जो वो डेवलप हो रहा था, जो बहुत से पेरेंट्स फेस करते हैं अपने बच्चों के साथ। आई हैव सीन अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन आल्सो। थप्पड़ लग जाता है, थप्पड़ लग जाता है, व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक दैट। हाँ राइट, तुमने इंसल्ट कर दी हमारी पब्लिकली। वो तो और फिर एक बड़ा ट्रॉमा ही हो जाता है बच्चे के लिए, जब आपने मार दिया किसी के सामने। हाँ। सो सी नाउ अगर मैं उससे इस चीज को नहीं बोलती कि देखो यू आर हर्टिंग योरसेल्फ, एंड थ्रू दैट हर्ट यू आर हर्टिंग मी ऑल्सो, नॉट जस्ट योरसेल्फ, यू आर हर्टिंग समबडी एल्स ऑल्सो, तो वो चीज बच्चे के दिमाग में नहीं आती है कि हाँ भैया मैं जो ये सेल्फ हार्म कर रहा हूँ, इस सेल्फ हार्म से सिर्फ मेरा ही हार्म नहीं किसी और का भी हार्म हो रहा है। तो ये अगर मैं उस चीज के बारे में बात ही नहीं करूंगी बच्चे से, तो बच्चे को कैसे समझ में आएगा? तो मुझे एज अ पेरेंट इस चीज को स्टॉप नहीं करना है, या इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना है।
बहुत से पेरेंट्स की टेंडेंसी ही यही होती है, एंड इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द पेरेंट्स, इट इज जनरली कि हमें ये किसी ने बताया ही नहीं है। अब मैं तो साइकोलॉजी पढ़ी हुई हूँ और मैं कोशिश करती हूँ उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की, तो हाँ मुझे पता है, बट somebody else who's not from the same field, उसको कैसे ही पता होगा? So right parenting and right environment to be given to the children, to teens, to pre-teens, it's very important. Plus फिर जब हम ट्वींस के साथ हम जब टीन एज में आते हैं तो hormonal changes आते हैं. There are many times that children do become withdrawn and aggressive because of what is happening with them, right? तो hormonal changes that are happening, उसकी वजह से भी कई बार ऐसे aggression देखने को मिलता है, काफी hostility देखने को मिलती है. तो कई बार सवाल ये भी आता है कि how do we understand कि my teen is normal, ये जो अग्रेशन जो शो कर रहा है, ये अग्रेशन नॉर्मल है, ये कैसे समझ में आएगा मुझे? तो अब ऐसे टाइम पे जनरली अग्रेशन इज नॉर्मल, ठीक है, मूडीनेस इज नॉर्मल, इरिटेबिलिटी होती है, वो आपको एज अ पेरेंट पुश अवे कर रहा है, दिस इज ऑल नॉर्मल. लेकिन कहीं भी अगर आपको ऐसा दिखे कि वो अपने फ्रेंड्स से भी विड्रॉ हो गया, भले बहुत बड़ा लाइक 20 लोगों का फ्रेंड सर्कल होना जरूरी नहीं है, एक दो भी अगर उसके फ्रेंड्स हैं जिससे वो अभी भी अच्छे कांटेक्ट में है, तो दिस इज ओके. लेकिन अगर सब सारे ही उसने अपने फ्रेंड सर्कल से अपने आप को अलग कर लिया, उतना अगर सोशल विड्रॉल हो रहा है, तो देन दैट इज नॉट नॉर्मल. अगर होपलेसनेस या वर्थलेसनेस की फीलिंग्स उसमें आपको दिख रही हैं, या सेल्फ हार्म कहीं दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये किसी तरीके से ड्रग अब्यूज की तरफ जा रहा है, सो ये these are indications of this aggression or this hostility not being normal. ये जो moodiness आया है अब इस टीनेज में, this is not normal. तो उस पॉइंट पर आपको ध्यान देना जरूरी होता है. एंड एज अ पेरेंट जनरली इस जो टीन एज में जो बच्चे होते हैं उसमें यही होता है कि वन डे वन बिहेवियर उस पे बोल दिया जाता है कि अब आप इतने भी बड़े नहीं हो गए हो कि आप ये डिसीजन अपने आप ले लो, एंड नेक्स्ट डे उसी एक्टिविटी पे आपको दूसरे दिन बोल दिया जाता है कि अब आप बड़े हो गए हो, आपको ये डिसीजन खुद ले लेना चाहिए. हाँ, तो कंफ्यूज उन्हें करना क्या है बेसिकली, ना बड़े हैं ना बच्चे हैं, ना बड़े हैं ना बच्चे हैं, बिल्कुल बीच में जो फंसे हुए हैं. तो वहां पे you do not need to push towards the parent, towards your child. There as a parent you need to or even as a family member, there are many times that we find people living in जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिलीज. तो वहाँ पे कई बार हम अपने मम्मी पापा से ज्यादा कनेक्टेड हम अपने ताऊजी ताईजी से किसी से होते हैं. तो वहाँ पे भी इन सच सिचुएशंस आल्सो इट इज एसेंशियल दैट अगर आप देख रहे हो कि योर चाइल्ड और योर टीन इज नॉट इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड, किसी भी तरीके से वो परेशान दिख रहा है, तो आप ऐसे में उस अप्रोच करो उसको, बट यू नीड टू अप्रोच, यू डू नॉट नीड टू अटैक. अटैक इज कि क्या हो गया तुम्हें, तुम आजकल ऐसे इस तरीके से बिहेव करते हो, ढंग से बात करो तो तुमसे ढंग से बात नहीं करते बनती है, तुम ढंग से खाना नहीं खाते हो, टाइम से सोते नहीं हो, टाइम से उठते नहीं हो, पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए रहते हो. तो दिस इज अटैकिंग. एंड द वन मोर थिंग कि वो रिलेटिव्स को बता देना कि ये आजकल ऐसे कर रहा है, तो वो हर रिलेटिव फोन करके फिर डांटना या चिल्लाना या लेक्चर देना शुरू कर देता है इन दैट वे. तो वो अटैकिंग वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं और बॉटल अप करना शुरू कर देता है बच्चा. ऐसे में फिर ये बच्चा जो होगा वो बहुत डिफेंसिव हो जाएगा. और आप इसको अब आप चाहो, अब आप जिसको अटैक कर रहे हो तो वो तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा ना. वो शेयरिंग के मोड में तो आएगा ही नहीं कि हाँ चलो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या है. अब आप इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे अगर लड़ाई हो रही है और वहां पे आप उसको गोली मार रहे हो, फिर उसको बोलो कि नहीं तू बता कि तेरे को लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. तो ऐसे कि ये इंडिया पाकिस्तान घर में भी हो जाती है जब टीन्स और पेरेंट्स के बीच की बात आती है. सो दिस इज वेयर यू नीड टू मेक इट
clear to your child, to your teen, I can understand that you are going through some problems, and we are concerned about it. We would like to help you, right? And if you want, I am there for you to talk. ऐसा नहीं कि आप मुझे ही आके बताओ. कई बार पेरेंट्स ये भी करते हैं कि आपको तुम बताना पड़ेगा, बैठो तुम इधर, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है. आप ऐसे फोर्स नहीं कर सकते. यू नीड टू प्रोवाइड दैट सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू टॉक अबाउट हिज ओन सेल्फ या व्हाट ही इज गोइंग थ्रू. So this is another thing where you can engage your child, your teen in a conversation, and बच्चा भी आपके जैसे. there are many times जब हम देखते हैं कि एक फैमिली इंटरवेंशन होता है कि पूरी फैमिली साथ में बैठी है और बच्चे को बैठाती है सामने एक चेयर पे बच्चा अकेला बैठा और उसके सामने एक पूरा पैनल ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल वाइवा लेने के लिए सब बैठे हुए होते हैं. हाँ. सब एग्जामिनर्स इकट्ठा, पूरी फैमिली ऐसे सर्कल बना के. दिस इज नॉट द सॉर्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट यू वांट टू पुट अ पर्सन इनटू. आप खुद भी उस सिचुएशन में होगे तो कुछ नहीं बोल पाओगे. तो अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट करे या आपसे बात करे या शेयर करे, तो आपको उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जरूरी है फैमिली में, एंड ऑन अ डे टू डे बेसिस. ऐसा नहीं कि मुझे अब लग रहा है कि अब तुम परेशान हो तो मैं आज से ऑनवर्ड्स तुम्हारे लिए ये एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा. ये बचपन से जब तक बच्चा आपको देखेगा नहीं उस तरीके के एनवायरनमेंट में, तब तक वो आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेगा. दैट ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू शेयर व्हाट इज going on in their life. तो उसके लिए this is very important कि आप शुरू से विजिलेंट रहें. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक विजिलेंट बन जाएं कि तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कितनी देर में आओगे. यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, बट लेकिन उसके पीछे आपको उसके ऊपर डंडा नहीं रखना है कि हाँ ठीक है, यू वांट टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, जस्ट टेल मी हाउ मच टाइम लेटर कैन आई एक्सपेक्ट यू बैक. इतने बजे तक आ ही जाना है. This doesn't work with anybody. It doesn't work with me also. So like मेरी मम्मा मुझे बोलती है अगर कि तुम्हें 9 बजे तक वापस आ जाना, अभी लॉकडाउन चल रहा था तो 9 बजे वापस आ जाना. तो I made it a point कि I reached home at 9:30. I'm a very elder person now. मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ अब. और आप एक टीन के साथ अगर ये करोगे तो फिर टीन तो वैसे ही रिबेलियस होता है. तो आपको उसकी you need to be aware of his routine, of his friends, who his friends are, his or her friends are, how does he connect to these people, कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं. So all of these things we do need to be aware about. लेकिन हमें पूरे समय की, अब तुम आधे घंटे का बोला था तुमने, अब 30 minutes 1 second हो गया, तुम घर नहीं पहुंचे हो. तो इतना भी लेकिन हमें उनके ऊपर पकड़ नहीं रखनी होती है. सो यू नीड टू लेट देम ग्रो ऑल्सो while providing them that environment कि okay, if you feel there is anything that is happening in your life or anything that you need to share, you need to come to me and talk to me about it, because I am going to be, I'm concerned, I care for you, and I will provide, or I'll make sure that I can provide that support to you that is required. Yeah, thank you so much, ma'am. So you enlighten us what is the role of family basically, what are signs, and very layman language की हमने से, मुझे नहीं लगता, कई बार हमें लगता है कि आपको सिर्फ प्रोफेशनल की जरूरत है इनको समझने के लिए, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो फैमिली वो जगह है जो सबसे पहले इन साइंस को समझ सकती है. तो बीइंग अ फैमिली मेंबर, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि साइंस क्या है आप उनको समझें, बच्चों के साथ पे कैसे डील करें, एंड फॉर द सेल्फ, because self love and self importance is much more than anything. अगर आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं, खुद के साइंस नहीं समझ रहे हैं, तो दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करना बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता. तो आज के सेशन में मैम एक और स्पेशल चीज है, बिकॉज हमारा टॉपिक साइंस ऑफ सुसाइड पे था,
और हमने जब से कैंपेन स्टार्ट किया है, इसके साथ में हमने स्टार्ट किया था कि वी वर इनवाइटिंग मेनी वॉरियर्स की हु वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। एंड आप मानोगे नहीं, हमारे 2 सेशन जा चुके हैं, हमें कोई भी वॉरियर नहीं मिला अभी तक, बट फॉर दिस सेशन वी फाइनली फाउंड अ वॉरियर who is ready to come and who will share his story with us. So we are calling them as a hero. So he is hero for this event. So I am requesting Ankur Bharadwaj. Ankur, you are here. Divya, Yes, please ma'am. unmute. Yeah, unmute and on your video. Yes, ma'am. I'm here. Hi, Ankur. Thank you so Hello, ma'am. much for joining us. So please introduce yourself. And we all are like very grateful and we really appreciate your ये बहुत बड़ी बात है कि आके बोलना सोशल प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज डेफिनेटली मैं 2 दिन से मैंने तब से मैसेज रोल आउट किया हुआ है, नो वन एवर कम आउट एंड स्पीक आउट. सो आई अप्रिशिएट दिस थिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू for this. Yes, Ankur, please. Thank you, ma'am. First of all, I would like to introduce myself. My name is Ankur. I'll be honest, I'm a bit nervous right now. It's okay. It's okay, Ankur. It's okay. Yeah. This is my first time sharing my experience on a public platform. So, being a depressive patient, थोड़ा सा nervousness होना तो बनता है, I think. तो suicidal thought तो नहीं, but मेरा self injury से बहुत close brush रहा है. Self injury आज से 8 साल पहले I used to cut myself, I used to harm myself, and I'm also battling with depression and addiction on a daily basis. So Shweta ma'am is my psychologist and she has helped me a lot during my treatment, and she has been the guiding light, so to say, in this journey of recovery. And आज मैं जितना confidently आपके सामने बैठ के बोल पा रहा हूँ, शायद मैं 1 साल पहले ये नहीं बोल पाता. मेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी के सामने अपनी शक्ल दिखा पाऊँ. तो जो कुछ भी हूँ मैं आज, वो मैं अपने साइकोलॉजिस्ट और अपने साइकियाट्रिस्ट दोनों को ही थैंकफुल. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम. देन जैसा श्वेता मैम ने बोला, सेल्फ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब मैं अपने आप को सेल्फ हार्म करता था तब तो मैं एक बहुत ही एडोलेसेंट एज में था, तो तब तो मेरे को इतना अवेयरनेस नहीं था. बट जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे को ये साइंस दिखने शुरू हो गए कि कब मैं अपने आप को हार्म करने वाला हूँ या कब मैं कुछ करने वाला हूँ. तो इट स्टार्टेड विद नाइफ्स एंड ऑल. पहले तो काटना शुरू किया मैंने हाथ पे, तो बढ़ता गया. देन आई यूज्ड टू पंच वॉल्स एंड ऑल, तो नकल्स पे काफी ब्लीडिंग होती थी. तो फिर वो, पर ये सब 8 साल पुरानी बातें हैं. नाउ आई एम ओवर दीज थिंग्स, थैंक्स टू माय डॉक्टर्स ऑफ कोर्स. अच्छा, व्हाट आर द मोटिवेशन? बिकॉज आई वुड रियली, मैं मतलब मैंने जितना देखा है थेरेपी के कोर्स में, हिज मदर इज लाइक सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी जो हमेशा हर सेशन में हर मोमेंट में अंकुर के हमेशा साथ होती है. इवन अभी जब कोविड के कारण हम शायद वीडियो सेशंस भी करते हैं या फोन सेशंस भी करते हैं, तब भी हमेशा मैम हमारे साथ में होती हैं. तो जब अगर आप फैमिली में हो अंकुर और कोई हेल्प आपके पास नहीं है, उस समय पे फर्स्ट मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं है, which can prevent you with this self-harm behavior? तुम्हारे लिए क्या रहा? Yes, my mother is the biggest motivating factor, I would say. कि आज भी जैसे the afternoon, तो when I had this thought, in fact I had a very close brush today with self injury. So just in the afternoon I had a knife in my hand. तो the first thing I called out, मतलब वहीं पे मैंने देख लिया कि जब चाकू हाथ में आ गया है तो that's not a good sign. तो मैंने उसी वक्त अपनी मामा को बुलाया कि this is not going right, and तो उन्होंने फिर हेल्प करी मेरी, and she was there for me. तो family is very important. Family is could be one of the biggest motivating factor for someone अगर जो ऐसा turn out हो तो. अगर जो फैमिली सपोर्टिव हो तो yes, one can pull out of depression easily. Definitely, Ankur. Thank you so much for your beautiful message and for your courage to come out and speak out on this sensitive topic, because usually लोग कभी भी इस बारे में बात नहीं करना चाहते कि कभी मेरे दिमाग में suicidal ideation आया था या मैंने कभी ऐसा कुछ attempt किया था. And this is, as ma'am already mentioned, this is not a sign of weakness.
हियर लाइक तुम हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हो ना कि मैं मेरे अंदर मेरी क्या वर्थ है, ये तुम्हारी वर्थ है कि एटलीस्ट यू कैन कम, यू हैव दिस करेज कि तुम सबके सामने बात कर सकते हो, ये तुम्हारी वर्थ है और ये तुमने अचीव किया है. थैंक यू वंस अगेन Thank अंकुर you. फॉर जॉइनिंग अस, एंड वी वुड रियली फ्रॉम टीम मनसा, फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट, फ्रॉम ऑल द ऑडियंस, वी are thankful and we are always with you for this. Thank you, And ma'am. I request Divya to unmute everyone. Anyone else, if they want to express any words to Ankur, they can share. I really want, because it took, like, I know it took biggest courage to speak out. And on a such shorter notice कि मैंने I think दिन में ही बात की थी और उसके बाद में ये चीज हुई है. Any one of you from the audience? That we call community support, when we can provide support to each other without having any blood relationship. No. Ankur, I would like to say something. I have seen a lot of, I've been in higher education for all of these years, and I've seen a lot of students come in and go out. There are many of them who are very strong. There are some who come in very timid and एकदम दबे हुए से आते हैं और फिर एकदम खुल के जाते हैं. And जो तुमने जो आज करा है, your ability to speak up, this is, ये खुद में एक बहुत बड़ी चीज है. एंड जब हम बच्चों से बोलते हैं कि अपने काउंसलिंग सेशन में आके दिल टॉक बोल के चले जाएंगे, सब अपना दिल हल्का करके चले जाएंगे, अपने आप को हेल्प भी करके चले जाएंगे, उस चीज से वो आगे ग्रो कर लेते हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स डाउन टू डीस्टिग्मेटाइजिंग मेंटल हेल्थ, वहां पे अगर किसी से बोला जाए कि आप बोलो या कम यूज दिस प्लेटफॉर्म टू डीस्टिग्मेटाइज व्हाट हैज हैपेंड टू यू, ये जनरली लोग इस अपॉर्चुनिटी को लेते नहीं है. And this is a very big sign of courage from your side, and it is since you said you have depression and you're fighting that constantly, तो ये जो contribution है तुम्हारा towards society, towards the community, this is really appreciable. And I hope that you start feeling better, you get well very soon, and you will be even a bigger warrior for all the mental health patients out there. Thank you, ma'am. Thank you so much. It will add you more in your personality, more and more. I'm already feeling it. Anyone else would like to express something for Ankur? Then we can go for the question and answer round. Yeah. Thank you, Ankur, for being like a hero in our society. So बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आपको देखकर बहुत सारी चीजें सीखेंगे और आगे आकर बोलने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे लोगों की जो है डिजीज वो क्योर होंगी सिर्फ आपकी वजह. You're welcome. I'm always there if I can be of some help. Very good. You have some messages, Ankur, in the chat box there also. Are so many messages for you, Ankur. So many messages. Yeah, I want to share. Thank you. Please, Vinita. Yeah. It's very difficult for मतलब एक person को अगर कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसे लगता है कि already negative है, it's very difficult to share with anyone. और वो courage जब आता है तो आप उस समय कमजोर नहीं रहते हैं. You are the strongest person. क्योंकि आप अपनी कमजोरी को, वीकनेस को शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सबको. So you are strong enough और you will cope up. आपका वो जो सबसे बड़ा फियर होता है ना कि लोग क्या कहेंगे जब इसके बारे में पता चलेगा, और जिस दिन आप ये बोल देते हैं उस दिन वो फियर खत्म हो जाता है और आप एक कदम आगे बढ़ जाते हो खुद की वर्थ के लिए, खुद के सेल्फ स्टीम के लिए, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए. बट हाँ, उस स्टेप पे पहुंचना बहुत बड़ा काम है, एंड उसके लिए आई रियली लाइक, मैं सबको बोलूंगी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, एंड he deserves this 3 claps and like as a group activity, please.
Thank you, Ankur. Thank you. Thank you so much. Thank you, Hello, everyone. good evening. Hello, good evening, ma'am. Yes, please, please. Yeah, ma'am, this is Rohan Pandey. I'm a psychologist and I have a question for Ankur. बहुत ही Yes, छोटा सा please. क्वेश्चन है. Yes, बताइए. हाँ बोलिए सर, आपकी Hello, आवाज. Ankur. हाँ. हाँ जी बताइए. I would like to ask you a question. बहुत ही छोटा सा minor question है. You said about your that when the knife was in your hand, you called your हाँ जी. mother. हाँ. तो in that case you are explaining that कि family supportive अगर हो तो मतलब ऐसी ideation से बचा जा सकता है. So I have a question कि that time अगर वहाँ पे parents या family ना होती, you were the alone and the knife was in your hand, so एक preventive step तुम अपने आप से अपने mind से कैसे लेते? क्या तुम्हारे mind में फिर आता अगर family वहाँ पे नहीं होती? I think मेरी mother को because I think it is a hidden part, and I think a psychologist should notice all these minor things also. So I have a little question. Okay, so my answer would be अगर जो उस वक्त मेरी मदर वहाँ पे ना होती तो भी शायद मैं वो स्टेप ना लेता, क्योंकि मदर को बुलाना ही अपने आप में एक प्रिवेंटिव स्टेप है. एंड मेरे दिमाग में थॉट आया कि मम्मी को बुलाया जाए, वो मेरी एक मतलब एक साइन है कि मैं वो गलत स्टेप नहीं लेने वाला था. अगर वो सोच भी दिमाग में आ या जाती गलत है ना स्टेप लेने से कि बच गया, हाँ, क्योंकि मेरे अगर बंद था, मेरे हाथ में चाकू आ चुका था, मेरी माँ को बुलाना मेरा चॉइस था. तो आई टुक दैट चॉइस एंड आई कॉल्ड माय मदर. आई कुड हैव नॉट डन दैट एंड हार्म्ड माय सेल्फ. अब मम्मा ना भी हो तो आई थिंक आई वुड हैव स्टॉप. अब एक्चुअल सिनेरियो में क्या होगा वो तो मैं आपको नहीं बता सकता अभी. नहीं आपको बताने की जरूरत भी नहीं. But really, Ankur, I appreciate your acts and what you did. I clap for you. And one more thing, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो societal ideations होती हैं, श्वेता मैम, I'm explaining to you कि मुझे ऐसा लगता है जो societal ideations होती हैं वो बहुत alone जब एक places होती हैं. Like अगर एक बच्चा है बहुत alone feel कर रहा है, the family is in the house but still he is alone in the room, staying alone. So he can do anything. he or she में. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोनलीनेस एंड मेंटल में दिमाग में होना और एक फिजिकल जो एक प्लेस है वहां पे अलोन होना, आई थिंक कि ये बहुत मेजर हो जाता है कि ऐसे इंसान एक्ट्स लेता है. डेफिनेटली. इसलिए हमने आज जो आइडिएशन रखा वो सेल्फ एंड फैमिली हमने इसलिए इंक्लूड किया था बिकॉज अगर उस टाइम पे आपकी वो एक मेंटल इमेज भी आ जाती है ना अबाउट योर फैमिली, जो आपको प्यार करते हैं, आपके होने ना होने से जिनको फर्क पड़ेगा, वो कंसर्न अगर वो उस समय पे वो मेंटल इमेज पे अगर आपके दिमाग में आ जाती है तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं. डेफिनेटली इट्स मोर इम्पोर्टेंट. Anyone else would like to express one more question, ma'am, Shweta ma'am. I'd like to ask you a question कि for a psychologist, which is the best part to suggest the parents for the child to come to the understanding level of the child, so that the child can easily recognize कि my parents are understanding my mental situation. तो फिर बच्चा मतलब जब I think जब parents जब उनको जैसे आपने बताया कि parents में ये होता है कि वो इनका एक अपना एटीट्यूड होता है कि हमको सब आता है, वी आर परफेक्ट. तो बच्चे को जब एक होता है ना कि कम्युनिकेशन टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन होता है, तो जब पेरेंट्स मान लीजिए अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हैं तो बच्चे को भी उस चीज का रिकॉग्निशन होना चाहिए कि पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग मी. एंड इफ द चाइल्ड इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग, सो चाइल्ड थोड़ा कट हो जाएगा, कम्युनिकेशन से गैप ले लेगा वो. तो मतलब हाउ टू सजेस्ट द पेरेंट्स फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट कि हाँ हाउ टू कम टू द possible understanding level limit so that you can manage your child. I think मैम ने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, कवर किया हुआ है. तब भी मैम आप दोबारा अगर ले लें, we have our guest speaker, so मैम already covered this question, but मैम you can again highlight the point. Sure, ma'am. The first and foremost thing that is required here is the parent in itself needs to be willing to show his or her vulnerability to the child. हम जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम पीडी में जब हम स्टार्ट करते हैं और सेल्फ एक्सप्लोरेशन वगैरह में बात करते हैं तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करिए और आप अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करिए, राइट.
एंड उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपको अपनी वीकनेसेस को आपकी स्ट्रेंथ बनाना है, yes, राइट? yes. तो अब आपको अपने बच्चे के सामने जब यू नीड टू पोर्ट्रे समथिंग, तो you do need to show your child that you are strong. ऐसा नहीं कि भाई आज मुझे सडनली या वर्क फ्रॉम होम की जगह आज मुझे सडनली यूनिवर्सिटी बुला लिया गया तो मैं बिल्कुल पानी पानी होके बैठ गई कि मैं यूनिवर्सिटी कैसे जा सकती हूँ. ये वीकनेस नहीं चाहिए मुझे, बट जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं वो स्ट्रेंथ्स होते हुए भी मैं अपनी इमोशंस व्यक्त कर सकती हूँ. अगर मेरे में कुछ आज मेरे में कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है तो मुझे उस नेगेटिव इमोशन को आने देना है, उसको एक्सपीरियंस करना है और उसको छोड़ के आगे निकलना है. कई लोगों का ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में बहुत काम कर रही हूँ, तो कई लोग ये मानते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी इज कि हम सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस एंड पॉजिटिव मेंटल स्टेट एंड इन सब की बात करते हैं. ऐसा नहीं है. आप हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते. इट इज नॉट पॉसिबल. आपको अपने नेगेटिव को भी उतना ही ध्यान देना है. इट नीड्स टू बी पेड अटेंशन टू. So as a parent, if you need to ensure that your child feels that he is in a safe environment, in a positive environment, in a caring environment, you need to be open to your own repertoire of emotions first. आपके बच्चे के सामने you need to be strong also. You need to show your emotions also. जब तक आप अपने इमोशंस की हैप्पी हो तो हैप्पी, सैड हो तो सैड, आज यू आर फीलिंग ब्लू, तो दैट इज ऑल्सो एन इमोशन दैट यू नीड टू शो टू योर चाइल्ड, बिकॉज योर चाइल्ड नीड्स टू बी गिवन दैट रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इन लाइफ कि एवरीथिंग कैन हैपन. नेगेटिव भी होगा, लेकिन उस नेगेटिव से डील करके आगे बढ़ने की कैपेसिटी मेरे में है. तब वो बच्चे में भी डेवलप होगा कि हाँ पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आएंगे, नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आएंगे, लेकिन नेगेटिव से मुझे हारना नहीं है. रिसेंटली मैं एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का कोर्स मैंने कोर्सेरा पे देखा था, वो मैंने किया था. I don't know whether it is free for the others or not, but it just came across to me. और मेरे बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी मुझे वो कोर्स करने की, तो आई कंप्लीटेड दैट. तो उसमें एक जो उसका पूरा ये है कि लाइक जैसे हमें एक्सीडेंट होता है तो हमें उस टाइम पे फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता है. वैसे ही कोई भी अगर लाइफ सिचुएशन होती है, वेदर इट इज अ डिजास्टर और इट इज सम एनी अदर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दैट इज हैपनिंग, फिजिकल डिजास्टर्स हो रहे हैं, उसके वो हो चाहे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो, कुछ भी ऐसा इवेंट होता है अगर लाइफ में, तो उसके बाद इमीडिएट जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है, दैट रिस्पॉन्स इज व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एंड इट हैज बीन फाउंड कि जो फर्स्ट एड, ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड या जो ये क्राइसिस इंटरवेंशन इमीडिएटली इवेंट के बाद दिया जाता है, दिस इज फाउंड टू बी 3 times more effective as compared to long term therapy sessions. तो अगर लाइफ में, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट कि सिर्फ डिप्रेशन के साथ सुसाइडल थॉट्स आते हैं, देयर आर मेनी टाइम्स दैट अदर इवेंट्स आल्सो लीड टू सुसाइडल आइडेशंस. तो उस कंटेक्स्ट में मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि जो इमीडिएट रिस्पॉन्स फैमिली ने दिया है, that is what is really really crucial at that point. वो इंटरवेंशन का काम करती है उस टाइम पे. तो आपने अगर वो एनवायरनमेंट अपने घर में नहीं क्रिएट करके रखा है कि आप अगर कुछ फील कर रहे हैं या अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप वो शेयर कर सकते हैं कभी भी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे. लेकिन वो अगर शुरू से वो एनवायरनमेंट नहीं हुआ है तो आज सडनली वो एनवायरनमेंट नहीं एस्टैब्लिश हो सकता. डेफिनेटली. तो आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. In this last 1 year, we lost 2 dogs. We are a family of pet lovers, so we have various sorts of pets. But पिछले 1 साल में पहले भी we had 2 pet dogs who passed away. But 1 साल में पिछले 2 pet dogs एकदम से गए. And my son saw both of these dogs going.
राइट। एंड वो इतना मतलब पहले मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं लगा, लेकिन धीरे 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 वो एकदम ऐसा क्लिंगी होने लगा था, और रोना गाना उसका बहुत होने लगा। एंड रात में वो उठ के ही यूज्ड टू हैव नाइटमेयर्स, और उठ के बैठ जाता था और रोता था। तो मैंने एक दिन फिर उससे थोड़ा थोड़ा देर करके पूछना चालू किया कि क्या हो रहा है, तुम क्यों इतने परेशान हो। तो अब जनरली सबके साथ ही वहां पे बैठे होते थे, नाना नानी हैं, उसके मामा हैं, तो सबके सामने जब भी मैं उससे पूछती थी वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एंड फिर रात में वो बिल्कुल बराबर मेरे पास आएगा और एकदम चिपक के मेरे से सोता था कि, और जब तक बिल्कुल गहरी नींद अगर नहीं उसकी लग जाए, मैं अगर उससे दूर हटूं तो वो एकदम उठ के बैठ जाता था। तो फिर मैंने उससे एक दिन ऐसे मैंने सब मतलब लैपटॉप मोबाइल ये वो सब कुछ बंद करके हम दोनों बिस्तर में लेटे, एंड आई आस्क्ड हिम कि बेबी तुम्हें क्या हो रहा है, क्यों आप इतने परेशान हो। एंड दैट इज वेयर हिज दिस स्टार्टेड कमिंग आउट कि मम्मा मुझे डेथ एंजाइटी, मतलब डेथ एंजाइटी तो मैं टर्म यूज कर रही हूँ, बट मम्मा आई डोंट वांट टू लूज माय दादू, आई डोंट वांट टू लूज माय नाना नानी, दे आर ओल्ड and they may go to God, and I don't want them to go to God, I want them to become young again, so that वो हमेशा मेरे साथ रहे ना। आप देखिए कि छोटा सा बच्चा है, कितना लाइक मैंने हम तो उसके पहले भी 2 डॉग्स की जो डेथ हुई थी तो वो उसके सामने ही हुई है, बट इस बार by this time he had become more cognizant of what is happening in his environment. अब ये चीज उसने अकेले में आके मुझसे कही, लेकिन वो अपने नाना से बहुत बहुत क्लोज है, इतना क्लोज है कि सुबह उठते साथ उसको नाना चाहिए, रात को सोने के पहले उसको नाना चाहिए, लेकिन नाना से जाके वो ये चीज शेयर नहीं कर पाया क्योंकि उन्हीं के बारे में उसको एंजाइटी हो रही थी। और यहाँ भी जब एक दिन ये हुआ कि रोता हुआ वहां से इधर आया, एंड पीछे से नाना आए उसके कि बेटा इसको देख ले क्या हो गया, इसको रो रहा है। तो आया, मैं गई एकदम बाहर, तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर लेके आया, बोला आप यहाँ बैठो, अब मैं आपको बताऊंगा। सो अब see now this is however close a child is to someone else, there will always be one focal point in that child's life, right? अब मैंने उसको शुरू से ये करके रखा है कि आपको जो भी हो रहा है, आपको जो भी सोच रहे हो, जो भी जैसा है, you need to share it with me, I am your best friend and I will always be your best friend, I will not judge you. कल भी हम खेल रहे थे तो he tells me mama don't judge me on this, but I am going to make it this like this. So I told him कि baby I don't judge you, whatever you do it is your decision, आप जो भी करोगे वो सही है। तो आपको वो सपोर्ट एक दिन सडनली नेगेटिव वो फील कर रहा है, तब आप उसको बोलो कि नहीं मैं आपको जज नहीं करूंगा, यू शेयर विथ मी इज नॉट द थिंग। कल तो हम खेल रहे थे, खेलने में भी आप अगर कहीं इवैल्यूएटिव कंपोनेंट लेके आ रहे हो तो वो बच्चा तो कभी ना कभी उसके दिमाग में वो आ ही जाएगा कि मुझे इवैल्यूएट किया जा रहा था, आज नहीं तो कल तो कहीं और किसी सिचुएशन में। तो ये सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो हम फैमिली एज अ फैमिली प्रोवाइड करते हैं, दिस नीड्स टू बी थ्रू आउट इन एवरी सिचुएशन। कई बार होता है कि बच्चे बहुत लाइक कैसे आप पार्टी में जा रहे हो या वेडिंग में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो बहुत अच्छे से तैयार होके आएगा बच्चा आपके सामने, उसके हिसाब से वो बहुत अच्छे से तैयार होके आया और एकदम से बोल दिया ये क्या पहना है तुमने। ये इवैल्यूएटिव कंपोनेंट है, ये जजिंग का कंपोनेंट है कि यू आर नॉट मैचिंग माय स्टैंडर्ड, राइट? तो ऐसी ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मतलब बोलने के पहले हमें सोचना चाहिए थोड़ा सा कि अगर कोई इतना हैप्पी फील कर रहा है तैयार होके, और आपको ठीक है इफ यू फील कि ये कलर कंपोनेंट मैच नहीं हो रहा है, तो व्हाट डज इट मेक अ डिफरेंस? एंड द थिंग इज दैट कि वहां पे वो सीखता है कि वो सेल्फ इम्पोर्टेंस, वैल्यू ऑफ योर सेल्फ, कि मैं जैसा भी हूँ मुझे वो अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो उसको सोसाइटी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रेशर वहीं पे कम हो जाएगा अगर एज अ पेरेंट्स एज अ फैमिली अगर हम उसे वो सपोर्ट देना शुरू करते हैं तो वो वर्थ खुद में डेवलप हो जाता है ना कि हाँ ठीक है मेरे खुद में वर्थ है। तो ये थोड़े दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी एंड दैट पर्सन सेड कि मैम आपको नहीं लगता कि सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए? आपको सोसाइटी का प्रेशर फील नहीं होता है क्या? हाँ। तो मैंने उसको सिंपल सी एक चीज बोली, मैंने बोला सुनो एक बात बताओ, क्या सोसाइटी हमेशा सही होती है?
अगर सोसाइटी हमेशा आज तक सही होती हुई आई है तो मैं सोसाइटी के बारे में सोचूं, या अगर आज XYZ इवेंट मेरी लाइफ में होता है तो उस टाइम पे सोसाइटी ने मेरे लिए क्या किया, भले कुछ नेगेटिव ना किया हो पर क्या कुछ पॉजिटिव किया, किसी तरीके से मुझे उस सिचुएशन में हेल्प किया, फैसिलिटेट किया, आपको आके और बताया कि ये आपने गलत किया, ये आपने ऐसे कैसे कर दिया, ये जरूर बताया. हाँ. So yeah, now I remember this girl was there. उसकी फैमिली वाले जो थे, सारे रिलेटिव्स जो थे, they were all behind her कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है अभी तक एंड शादी कर लेनी चाहिए अब तुमको. तो वो इस चीज पे ये बात निकली कि आपको प्रेशर नहीं फील होता है क्या सोसाइटी का किसी भी तरीके से, तो क्यों सोसाइटी का प्रेशर हम फील करें. Like, ठीक है, we are living in the society. It's not that you need to be rebellious in the society. You're starting to harm the culture of the society. It's not like that. But the thing is कि everything एक लकीर नहीं है कि ये X point है और ये X point जो है ये सही है सोसाइटी के हिसाब से, तो ये आपके लिए भी सही होगा. जरूरी नहीं होता है. और ये आपको अपने बच्चे में इंस्टिल करना बहुत जरूरी है कि it is not always that you need to conform to the laws of the society. You need to develop the child according to his own ideation. उसका belief system, उसकी ethics, उसका moral code खुद में develop होना चाहिए. Society का based moral code नहीं होना चाहिए. ये this तो I'm very strongly big advocate for this कि you may follow whatever religion you're wanting to follow, but बच्चे में एक spirituality, एक humanity होना बहुत जरूरी है. और ये जब तक आप अपने बिहेवियर में नहीं लेके आओगे, ये आपके बच्चे के बिहेवियर में भी नहीं आएगा, ये आपकी फैमिली में भी नहीं आएगा. Yeah, and family doesn't mean only for the blood relationship. Family could be definitely anyone with whom you connect spiritually, with whom you connect. वो soul connect आना important है. तो वहाँ पे इसीलिए when we are talking about कि role of family, रोल ऑफ सेल्फ क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, तो डोंट कंसीडर कि हम सिर्फ वो 4 लोगों की फैमिली, 5 लोगों की फैमिली है. इट इज अबाउट आपका जो क्लोज सर्कल है, जिनको आप फैमिली की तरह कंसीडर करते हो, ये उन सब के लिए. ओके, थैंक यू सो मच मैम. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? ऑल्दो वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम, we are already like 1 hour we completed, and thank you so much ma'am for this insightful discussion. It is much important and this topic is like widely like बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं कि अगर बात करते जाएं नेवर एंडिंग है. बट आई होप आवर ऑडियंस इज सेटिस्फाइड विद ऑल द पॉइंट्स एंड डिस्कशन वी डिड हियर. इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन व्हिच यू फील कि हमने कवर नहीं किया है, सो प्लीज एक्सप्रेस. There are so many questions we already covered. If any specific question, Vrunda, you can unmute yourself and you can ask directly. Divya, please unmute participants. Ma'am, is it necessary that person having suicidal thought is in depression? Is it? Can you repeat the question, please, Vrunda? Is it necessary that person having suicidal thought is in depression? Is in depression? Yes. Yeah, because you know, suicide is something. One is an impulsive act. So ideation, if that is coming on the repeated level, क्योंकि हर बार impulsive act नहीं होता है, कभी कभी कोई सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाए, बहुत ही वर्स्ट हो जाए, तब वो बिल्कुल impulsive act होगा जिसमें अटेम्प्ट नहीं होंगे, आइडिएशन नहीं होंगे. दैट इज डिफरेंट थिंग. तब डिप्रेशन होना नहीं होना इंपॉर्टेंट नहीं है. अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन. उसके पहले कहीं ना कहीं डिप्रेशन का लेवल रहा है, तभी वो सुसाइडल अटेम्प्ट तक पहुंचता है या वो सुसाइडल आइडिएशन को लीड करता है. Thank you, ma'am. I just wanted to ask one more question. Can it be another disorder if a person is having suicidal thoughts? Only suicidal thoughts, not more with that, but yeah, like, it could be because it is a part of mental disorder. So there are so many, like in schizophrenia also, if they are having hallucination, so they usually act according to hallucination, visual hallucination, auditory hallucination, delusional disorder. There are so many disorders where suicide is attached. So mental disorders and suicide, we are going to have a session, a specific session on it. So I request you to join that. Okay. Suicide is not only attached to depression. There are many mental disorders which are attached to depression. Okay. And ma'am, can you by Dr. Deepti
Dr. Deepthi Mishra. So she will join us, like, I think in another 2-3 days, we will have session on this specific topic. Okay. And can you tell some ways to destigmatize mental health? Speak about it. Speak about it. As a student, speak out. Like हमारा मनसा का motto है, like speak out, reach out and end the stigma. तो जितना आप बोलोगे, बोलना बहुत जरूरी है. जहाँ पे आप बोलना शुरू करते हो बिना ये सोचोगे कि मुझे कोई जज करेगा या कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, और वो एक फीलिंग होती है ना, लोग क्या कहेंगे, या हम लास्ट 3 सेशन से हम ये रिपीट कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी जिस दिन आप छोड़ देंगे, उस दिन मेंटल हेल्थ का डीस्टिग्माइजेशन होना शुरू हो जाएगा. यस मैम. लेकिन जिस दिन दिल की बात आप सुनना शुरू करेंगे, आपका जो मन करता है, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. लोग आपको 10 लोग आके 10 एडवाइस देंगे. मैं ये नहीं बोल रही कि उसमें से कुछ एडवाइसेस काम की नहीं हो सकती, बट आपका दिल क्या बोल रहा है, आप किस पे स्टैंड कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है. ओके, थैंक यू सो मच मैम. टॉक मोर अबाउट इट. ठीक है, अगर आसपास लग रहा है कि यू कैन प्रोवाइड हेल्प, यू कैन प्रोवाइड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, गो फॉर इट. ओके, thank you ma'am. Anyone else? Ma'am, there are some questions in the chat box. Yeah, Radhika, please ask. I'll do it. Can you read out? Aditi asked, how do we detect signs in people who are very jovial and outgoing? See, it's not always that you will find signs in a person. There are some times when suicide or the act of suicide or trying to commit suicide or parasuicide or suicide, it can be instantaneous. अभी तक कोई उसका साइन नहीं था, लेकिन अब this person committed that act. तो there can be situations, but फिर भी मुझे ये लगता है कि maybe like उन लोगों के आसपास ऐसे व्यक्ति नहीं रहे होंगे जो उस चीज को कैच कर पाए, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइन होपलेसनेस का या वर्थ नहीं फील कर पाने के कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे, और ये कई बार ना बातों में निकल आते हैं. तो आप लाइक दिस इज व्हाई जब हम काउंसलिंग की भी बात करते हैं और थेरेपी सेशंस की भी बात करते हैं, वहां पे एक्टिव लिसनिंग की बात करी जाती है. ज्यादातर लोग बहुत पैसिव लिसनर्स होते हैं कि हाँ कोई और बोल रहा है तो हाँ करते हैं, लेकिन रजिस्टर हो रहा होता है कि कोई कुछ बात कर रहा है लेकिन यहाँ नहीं जा रहा होता है. दिस इज ये बहुत बड़ी एक फ्लॉ है हमारी. We want others to listen to us, but we do not want to listen to what somebody else is saying. So ये active listening जब हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा इन जनरल लाइफ में भी अगर हम अप्लाई करने लगे तो हमारे रिलेशनशिप्स भी बेटर होते जाते हैं उससे. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट ऑफ काउंसलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजी. तो ये मुझे लगता है कि देयर आर स्टिल some signs which where you need to be observant. आपकी observation skills बहुत अच्छी होनी चाहिए. You need to be very quick on catching certain cues that are there. तो cues we already discussed, like what are early signs, क्या changes आते हैं behavior में, इन सबको अगर आप focus करेंगे तो then you can find. Okay, राधिका और दिव्या pick up the questions which we हम जो cover नहीं कर पाए discussion में. I think maximum question we covered in the discussion. तो वो क्वेश्चन बिल्कुल भी कवर नहीं हुए हैं. हम एक क्वेश्चन है, चारवी ने पूछा है, व्हाट चेंजेस कैन बी ब्रॉट इन स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम टू ब्रिंग अबाउट द वैल्यूज ऑफ काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी अमंग द स्टूडेंट्स एंड क्रिएटिंग अ मोर पॉजिटिव एनवायरनमेंट सो दैट वी कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ पीपल आइसोलेटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम अदर्स. यस मैम. ओके, See, as such, curriculum में हम बहुत ज़्यादा changes नहीं कर सकते because curriculum is supposed to be a unified curriculum that is prescribed by the UGC. लेकिन ये चीज़ मैं अपनी experience से बता रही हूँ कि I have had various professors in my life. I studied in Nutan College. Then I had the opportunity of working with Vinay sir and BSS. And at the present moment, my guide is Anita ma'am, who is in MLB College, Bhopal. I have also had the
my coursework classes and all in the UTD in Bhopal University, and I see psychology teachers, they're all professors. They all have had a long stint in higher education. And I can put them in two groups, two complete boxes, two separate, right? Yeah. One are who are the traditional psychologists, who are not willing to think out of the box. And one where I find that they're willing to experiment with everything. नया जो भी आ रहा है उसके साथ. Psychology is a very dynamic subject. It changes from second to second. आप मिनट टू मिनट या डे टू डे की भी बात मत करो, आप सेकंड टू सेकंड की बात करो, क्योंकि आप डील ही एक ह्यूमन बीइंग के साथ कर रहे हो जो सेकंड टू सेकंड चेंज होता है. तो द होल फ्रेटर्निटी इटसेल्फ इज दैट डायनामिक, क्योंकि हम जिनके साथ डील कर रहे हैं वो उतने डायनामिक लोग हैं. तो as a teacher or as a person who has been in higher education for that long, I very strongly believe कि स्कूल में शुरुआत से हम मॉरल साइंस पढ़ाते हैं. मॉरल वैल्यूज का एक क्लास होता है स्कूल में, विच इज ऑफ नो यूज एट ऑल. बिलीव मी, कोई यूज नहीं होता. मैं एक पब्लिक स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, CBSE की. हमारे यहाँ मॉरल वैल्यूज नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन हमारे जो टीचर्स थे, उन टीचर्स में वो वैल्यूज थे कि जो कितना भी बदमाश लड़का हो हमारे स्कूल का, जो जिनको बाकी पूरी दुनिया में जिनको बोला जाता था कि ये तो किसी कुछ करने लायक नहीं है, वो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते थे. And believe me, those guys have turned out to be the best of gems in that society, that whichever society they are living in. So ये वैल्यू सिस्टम जो है ना, ये बचपन से इनकलकेट किया जाता है, और ये सबसे पहले टीचर्स में होना चाहिए. तो स्कूल लेवल पे अगर आप इस चीज की बात करो, तो स्कूल में ईच स्कूल शुड हैव अ काउंसलर who is working only for counseling, who is not taking substitution classes and value education classes. And I would psychology classes. I would really tell all of you all out here who are listening, if you are a psychologist in a school, and specifically if you are a counseling psychologist or a clinical psychologist with the school, make sure whenever you जब आपका appointment हो रहा होता है, you tell them point blank कि substitution classes, library classes, moral science classes ये लेने के लिए मैं नहीं आई हूँ यहाँ पे. इसके लिए आप किसी और को employ करिए. आप यहाँ पे क्यों हो? You are here to make the environment of the whole school better. How? You can design workshops for parents, for students, for teachers. अब आप students के लिए भी करोगे तो you will have different grades. आपको elementary के लिए अलग करना पड़ेगा, primary के लिए अलग करना पड़ेगा, secondary के लिए अलग करना पड़ेगा. हर grade के लिए और students के लिए आपको अलग programs बनाने पड़ेंगे. लेकिन फिर ये नहीं है कि आप as a counselor बिल्कुल आराम से ना counseling cell में बैठे हो और हम एक महीने में एक workshop करा रहे हैं. ऐसा नहीं. आपकी प्रोडक्टिविटी भी वहां पे दिखनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वो उस चीज को इवैल्यूएट करेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी है कि नहीं है ना. तो एज अ काउंसलर और आजकल तो हमने ये भी देखा है कि वाइस प्रिंसिपल की रैंक्स जो होती हैं स्कूल में, वहां पे भी वो लोग साइकोलॉजी वाले बैकग्राउंड वाले लोगों को प्रेफर करने लगे, बिकॉज पीपल हैव नाउ स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजी जो है, आप कहीं भी इंडिविजुअल से डील कर रहे हो वहाँ साइकोलॉजी है, तो आपको उस चीज को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना चालू करना पड़ेगा. तो जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे उस चीज को. तो स्कूल लेवल में इट नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम देयर. साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनको खुद को अपने दिमाग से स्टिग्मा हटाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. मैं बहुत से साइकोलॉजिस्ट से मिली हूँ जो सोसाइटी का स्टिग्मा खुद ही लेके चलते हैं. हाँ, सोसाइटी क्या सोचेगी. अब भाई, अगर आप ही ऐसी बात करोगे तो आपके पास आने वाला व्यक्ति क्या ही सोचेगा या कहाँ ही आगे बढ़ेगा. तो अपने दिमाग से एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट सबसे पहले अपने दिमाग से वो स्टिग्मा हटाओ कि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ.
वो ओरिएंटेशन नहीं, होना बहुत इम्पोर्टेंट है वो एंड बहुत डोंट इम्पोर्टेंट कम है। इन द फील्ड जस्ट बिकॉज कि वो अट्रैक्शन है कि ओहो वी आर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स और वी आर लाइक मोर फेमस इन द बॉलीवुड मूवीज एंड हॉलीवुड मूवीज। ठीक है, वो ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है विच आई फील व्हेन आई टुक लाइक इंटर्न्स, तो मुझे कई इंटर्न्स के साथ में ये डिफिकल्टी आती है। वो ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बहुत व्हाट वी नीड टू चेंज कि मतलब वो एक पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा धीरे धीरे। हाँ, हमें खुद से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी है कि हम उस डब्बे में नहीं बंद हो जाएं कि भाई साइकोलॉजी में 40 साल पहले इस व्यक्ति ने ये कहा था तो वो लकीर की फकीर वही आज हम चले आ रहे हैं। ये नहीं करना है हमें। डायनेमिक फील्ड है, चेंज होती जाती है, आपको उसके साथ चेंज होना पड़ेगा। यू नीड टू बी अ वेरी फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी। इन योरसेल्फ यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। अगर आप खुद में फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप वो फ्लेक्सिबिलिटी अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ, अपने आसपास अपने लोगों के साथ, आपके जो लोग हैं उनके साथ, जरूरी नहीं आपकी फैमिली इज योर पेशेंट और योर क्लाइंट, योर फ्रेंड्स आर योर पेशेंट्स और योर क्लाइंट्स, बट जब तक आप अपना दिमाग खोल के नहीं रखोगे कि हाँ ठीक है, आपकी लाइफ की जो भी परेशानी है आप मेरे से आके बात कर सकते हो उस चीज के बारे में, या मेरी अगर लाइफ की कोई परेशानी है तो मैं जाके किसी से उस चीज के बारे में बात कर सकती हूँ, या मैं उसके लिए हेल्प मांग सकती हूँ। जब तक वो मेरे में नहीं आएगा एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं अपने आसपास के लोगों में वो चीज कैसे इंस्टिल कर पाऊंगी? नहीं पॉसिबल है। तो इट्स नॉट अबाउट द करिकुलम, इट इज अबाउट यू एज अ ह्यूमन बीइंग दैट यू नीड टू डू। Yeah, definitely, ma'am. Very right question. And I think ma'am answered it very correctly. And we all need to change this perspective. So now, as I think we should close the session, it's already 8:45. And I can see ma'am Sons is already waiting. हमने बहुत ज़्यादा time ले लिया है. So we should justice now. So thank you so much once again, ma'am, from the team Mansa, for sparing all your time and for sharing all the practical experiences with us. We were looking for this thing only. And we are thankful to Ankur once again to come on this stage and speak out. So we really appreciate, and we will look forward for some more people who can share their practical experiences with us. So now we are signing off and we will meet you again. So for tomorrow, our session, we will have Dr. Jyotsna Joshi, who is like teacher for me and for Dr. Urvashi ma'am also. And we will have morning session for tomorrow. I'll update you with the timing and with the link for the registration link. Thank you. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye-bye.